ओके और ओके। मैंने ये पावर बुक्स वगैरह भी मंगाई थी, तो उनके बिल पे भी थैंक यू पेड लिख दिया। हाँ हाँ, यानी बहुत सारे बिल्स है घर के, हम निकाल के थैंक यू पे लिख सकते हैं। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली अपने होता क्या ना, हम लोग की जॉइंट फैमिली है जैसे, तो सारे हम्म, बिल्स या तो ये पेमेंट करते हैं, बाहर ऑफिस में रहते हैं, अंदर आते ही नहीं है, अच्छा अच्छा। तो मिलते ही नहीं है। तो इसलिए जो मेरा अमेजन वगैरह पे रहता है, तो वो बिल्स पे थैंक यू पेड कर देते अच्छा चलो ठीक। जैसे मेरे तो ग्रोसरी के इतने सारे बिल्स होते हैं, मेरे पास ही होते हैं, तो मैं सबको इकट्ठा करके फिर लिख देती हूँ। हैं। और हम लोग का ग्रोसरी का एक ही जगह बिल आता है सारा। अच्छा। हाँ, यानी बस ये मनी के लिए तो फीलिंग्स लाना ही जरूरी है। अगर आप बिल पे लिखते हो तो उससे एक फीलिंग्स अंदर होती है और वो एक तरह पैसा की हैबिट चाहिए। बन जाती है। ओके चलो, तो फिर फिक्स डेट प्रोग्रामिंग करते हैं। आज तो किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। 10 मिनट्स हो गया। हाँ वही, चलो। Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, आपको so सुनाई दे रहा let's है ना? start. 3, 2, सुनाई दे रहा है? go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. And you say to yourself, I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, Yes, stop, stop, stop. I'm the Thank you, winner. thank you. And now you say to yourself, yes, I am the I'm the winner. winner. Yes, I'm the I'm the winner. winner. I'm I'm the the winner. winner. I'm the winner. And now again, we say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I can. I I can. will. I I will. must. I must. I can. I will. I'm a Thank you. Thank you. ओके बेनीता जी, आप पढ़ोगे आज? चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, पढ़ लें। ओके ओके। सो मैजिक डस्ट एवरीवन। आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जैसे अभी तक हमने 9 दिन तक ये किया है मैजिक बुक, तो 10वें दिन पे जब हम आते हैं तो हम इतना पावर कलेक्ट कर पाते हैं कि अब हम किसी और को ब्लेस कर सकते हैं। इतना हमें अंदर से, इतना हमारे अंदर वो प्यार भरा हुआ है, जो पावर है प्यार का, लव लव, तो अब हम किसी और को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। इसीलिए रोंडा बर्न ने ये चैप्टर 10वें दिन पे रखा है। सो ओके, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? कुछ लोग है ना, हाँ, some people are there and magicals are on everyone. So like the magical sparkles from above are coming on everyone, it's showering on everyone. everybody. Yeah. And it seems like a public place. Maybe it's a train station or an,
airport or see. something like that. So yes, let's read. No duty is more urgent than that of remaining thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings says that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Yeah, so spiritual teachings क्या कहती है? Ancient spiritual teachings क्या कहती है कि जो भी अपने फुल हार्ट से 100 फोल्ड रिटर्न करता है किसी को भी, तो जैसे ही आप किसी को थैंक यू बोलते हैं किसी और के लिए, जब आप ग्रेटफुल रहते हो, तब क्या होता है कि वही ग्रेटफुलनेस, वही ब्लेसिंग्स आप हमेशा रिसीव करते हो अपनी लाइफ में। तो किसी को भी ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। जैसे हम, ऐसा नहीं होता कि हम बस लेते रहे हैं हमेशा लाइफ में, हमेशा हमें देना ज्यादा पड़ेगा अगर हमें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में भी। और ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए इसलिए देना है, पर ये हमारा, जैसे ये एक हमारा धर्म होता है, लॉ ऑफ धर्म, दैट वी हैव टू गिव in order to receive. Okay, let's read further. If everyone is okay now, we can keep timing 3 also. Generally देखते सब कुछ 3 बजे log in करते हैं. Yeah, but I just moved time because now we are reading power book also. We are reading magic book, and I usually go You to don't 1 get at time for 7. that. Yeah. So like if I'm reading until 6:45 and I have to reach, Late for I have to office. reach to my work at 7. So that's why I kept it 15 minutes earlier. So I can explain well, and I can make you all understand what exactly needed to be done in magic book. Especially magic book is very, very important, even Yes. power book. इन पावर बुक में तो मैं हमेशा अभी बहुत धीरे धीरे ही जा रही हूँ, ज्यादा टॉपिक्स ले भी नहीं रही हूँ। तो इसीलिए 2:45 मेरे लिए बेस्ट टाइम है। तो हम बहुत हाँ, उठ जाइए, आप बाहर चले जाइए माता जी। Gratitude is a powerful energy, and so whoever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like a sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whoever you sprinkle it on. Yes, so wherever our thinking goes, wherever our attention goes, energy flows. So the same way, gratitude is a very, very powerful energy. So whomever you direct your gratitude's energy toward, that's where it goes. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने बहुत बार पढ़ा कि जैसे जहाँ पे भी हमारा अटेंशन जाता है, वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो उसी तरह से जब हम किसी और के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, वो जो पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उनके ऊपर, उनके तरफ हम भेज रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी होती है। किसी का, मान लो किसी का दिन खराब है, तो आप अपने अच्छी एनर्जी की वजह से उनका दिन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी अच्छी एनर्जी उनको भेज रहे हो। कभी कभी मैं अभी ऐसे भी करती हूँ कि जैसे मेरे इंडिया में कोई बीमार है, मेरे मम्मी है या कोई भी, अगर जैसे कुछ भी हुआ, तो मैं अपनी अच्छी हीलिंग एनर्जी उनको भेजती हूँ कि जल्दी जल्दी हील हो जाए, और वो हमेशा काम करता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। जैसे आगे का चैप्टर आएगा जिसमें हम 3 लोगों को चुनते हैं और हीलिंग एनर्जीज या कोई भी अच्छी एनर्जीज भेजते हैं उनके कोई भी एरियाज में जहाँ पे वो अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
तो उसी तरह आज का जो चैप्टर है, बस हमें खाली ब्लेसिंग्स देना है, जो भी हमें मिले इनको ब्लेस करो. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Yes, so most of the people we meet every single day, जिनको भी हम मिलते हैं कहाँ कहीं पे भी, मे बी थ्रू ईमेल, फेस टू फेस मिलते हैं, कहीं स्टोर में चले गए, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, किसी न किसी को तो हम जरूर मिलते हैं रोज की हमारी लाइफ में. अगर घर पे भी रहते हैं तो एटलीस्ट चलो वेजिटेबल वेंडर्स को मिल लेते हैं. तो जिनको भी मिलते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो किया होता है. कुछ तो है जब जो हम इनसे रिसीव करते हैं, तो उनको ग्रेटिट्यूड, इनको ब्लेसिंग्स देना इतना इम्पोर्टेंट है. और इतना अच्छा भी, अच्छी फीलिंग्स भी आती है जब आप ब्लेसिंग्स देते हो. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Think about the people you encounter on a typical day who provided you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer, service people, cleanser, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for the service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. सो जितनी कितनी सारी सर्विसेज हमें रोज मिलती है, कितने सारा ऐसा स्टाफ होता है जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हैं. तो सबको जो भी, जिनसे भी हम सर्विसेज लेते हैं, उनको अगर हमने उनको ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो वी आर स्टॉपिंग द गुड कमिंग फ्रॉम कमिंग इनटू आवर लाइफ. यानी हम अपने ही अच्छे के लिए, अपने ही अच्छे को रोक रहे हैं अपनी लाइफ में आने से, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है. आप ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप अपने तक नहीं रख सकते हो. ये एक ऐसी चीज है जो आपको फैलानी होती है. यू नो, जब आप सबको ब्लेसिंग देते हो, जब आप सबका ही अच्छा करने का सोचते हो, सबका ही हमेशा भला सोचते हो, तभी तो आपको, यानी ये तो गिव एंड टेक ही होता है ना, राइट? ऐसा तो नहीं होता कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी हम अपने तक रखो. हम किसी न किसी को तो ग्रेटिट्यूड करते ही है. तो अभी ये आज हमें किन लोगों को लेना है कि जो भी सर्विसेज हम रिसीव करते हैं जिनके पास से, उन सबको, जैसे बस ड्राइवर्स है, रेस्टोरेंट में चले गए तो वेटर्स वगैरह है, वहां पे जो भी स्टाफ काम करता है, अगर कहीं ये सभी जगह पे जो क्लीनर्स आते हैं, जो भी कितना, अगर आप कहीं पे काम करते हो, वहां पे कोई बंदा चाय आपके लिए ला रहा है, या कुछ भी, कोई भी जो भी सर्विसेज आप रिसीव करते हो, सभी को ये ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, बहुत. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. मॉर्निंग में मैं करती हूँ डेली. मतलब जैसे जो मेड्स आती हैं उन पे, जो बाथरूम क्लीनर आते हैं उन पे, जो रोड साफ करते हैं, सबका नाम लेके, ये सारे फार्मर्स पे, सारे जो मजदूर हैं जो काम करते हैं कहीं ना कहीं डेली वेजेस के लिए, उनके ऊपर, ऑटो रिक्शा वाले पे, जो भीख मांगते हैं उनके लिए भी, सबका नाम लेके एक साथ सबको ये देते हैं. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Think about the maintenance worker who keep your transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. हाँ, तो ये जो अभी तो हम, चलो ये सब फ्रंट एंड में जो काम करते, जिनको हम देख सकते, उनको हमने ग्रेटिट्यूड दिया. अभी यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बैक एंड में काम करते हैं, जिनको हम वैसे नहीं मिलते. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कितना कुछ मेंटेनेंस होता है, तो वो लोग मेंटेन करते हैं सब चीजें. हमारे रोड्स कोई ना कोई मेंटेन करता है, कभी हमको वो दिख जाते काम करते हो, कभी नहीं भी दिखते. तो ये सब लोगों को भी ये जो हमें जिनसे हमें सर्विसेज मिल रही है,
उनको भी ग्रेटिट्यूड देना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, तो जो Think हमारा about ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी सेफ्टी रखते हैं, जैसे ट्रेन्स वगैरह भी है, एयरप्लेन्स है, उसको भी कितना मेंटेनेंस लगता है, तो वो लोग सब मेंटेन करते हैं, तो उनको भी ग्रेटिट्यूड बोलना बहुत जरूरी है. ओके. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, aeroplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and our office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass on of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. तो अभी आप जब भी देखते हो, चलो वहां पे कोई पर्सन मिला या नहीं मिला, पर आप जब देखते भी हो कि अगर इतना अच्छा क्लीन डेस्क मुझे मिला है, किसी न किसी ने साफ किया है आपके ऑफिस में, या फिर आप चल रहे हो रास्ते पे और रास्ते पे चलते चलते आपको मिलता है इतना अच्छा क्लीन रोड मिलता है, या क्लीन साइड वॉक, यहाँ पे जो हम साइड में जिस पे वॉक करते हैं वो साइड वॉक आपको एकदम क्लीन मिलता है, आपको आप अगर काम करते हो जॉब पे एकदम पॉलिश्ड क्लीन फ्लोर मिलता है, या कुछ भी है, जो भी हॉस्पिटल्स है, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ट्रेन्स में चले जाते हो, पब्लिक बाथरूम्स में अगर जाते हो, तो वो इतना क्लीन होता है. सबके ऊपर मैजिक डस्ट से हम सबको इंडिविजुअली तो थैंक्स नहीं बोल सकते जाके, पर एटलीस्ट सबको हम मैजिक डस्ट तो भेज सकते हैं, राइट? Yes. Farida, do you have any? Yeah, I want to tell you something. Uh-huh. Actually, there is one another meeting which was sent by Binita, I think. Uh-huh. Okay, and everybody has joined that meeting. Oh, So it okay. was in morning. No, It was- but I think no. Right It was now, in morning most of the 5, 2-3 participants are in that meeting, and that meeting is going on right now. No, that is the magic class is going right now on advanced magic class. Nilesh sir is Yeah, taking. yes. So few of the participants are in that meeting. That's okay. And That's okay. I have sent the link of Sadaf started in morning 20 minutes Yeah. magic. So I have sent the link, then that was in morning 5:30 to 5:50. Okay. Okay. Every day it is going to happen. Anyone can join that. Yeah, so I think the few of the participants are in that meeting. Okay. No problem. No problem. It's okay. Okay. Yeah. Yeah. We can continue with our magic. अपना तो जो है रोज का टाइम है, इसके हम ऊपर Yeah, I हम think by mistake they have joined by because mummy is also, I think, Yes. she was also saying that I Okay. can see someone else in the meeting. So Yes, by mistake they exactly. have so No, not by mistake. That is the paid class, and that is taken by Nilesh sir, and it was taken on Wednesday morning 9. And those who have missed na, they are going to join today from 3 to 4. Mm-hmm. Okay. Yeah, so that No, meeting is I on, think and Some link is circulating and they are joining. by mistake only they have joined because mummy called me up and she said that someone else is speaking. yeah, Oh. even actually I thought that I don't, instead of Alifia, somebody else is taking the class. Oh, so there is some kind of confusion, I they guess. have joined. Yes, that's what we are trying to say. Actually, That couple Rehan of, aunty is members also are by asking me, mistake. where are you today? I think there is Yes, some yes. confusion. We thought that you have asked somebody else to take that class. We thought that. Oh my God. Oh. Okay, so there is a confusion. But where did this link come from? Because it's not in our group. No, it is in the group. It is in the group? Oh, Yes, Yeah, in yes. the So because every day, like I just scroll down the link and I just got this link and I just logged in, and there are so many participants. I also thought that I mean today, why so many participants are there? okay. I think Hakeem, then Mummy, and then my mother and everyone. I think they are there only. Oh, so maybe ask them to join here because they Yes, will yeah, have a lot of they- magic. Yeah, I don't want to. I'll That call class- mom and ask her to join. Yes. No, so that link is of the morning 5:30 a.m. No, but it is going on right of now. Indian Standard.
Indian Standard Time. But it is Okay. going on right now. Huh? It is going on right now. It is live. Someone is there. Yes, there are. Yeah. So there are is many some participants. confusion, I guess, and Rehana auntie and all of them, they joined the another link. Yes. Maybe it's Exactly. yeah, I don't know, but it's okay. Maybe if you guys can, message them to come back this in this Yeah. link, send them the link Yes. so they can join again. That's why till 10 minutes no one was there in the class. Yeah, today was like only Binita ji and another person. Yeah. Yeah, उनका she's my नाम मुझे sister नहीं पता है, Mita. वो join हुए थे. Yeah, she's my sister Mita. हाँ, तो आपकी सिस्टर है. अच्छा. बिनीता जी. Madhav Okay. Modi is her son. हाँ. Okay, let me actually text her. Yeah, okay. I have informed mom she's joining in this link. Okay, very nice. Thank you Uh, for coming up Mr. because I Hakim. didn't know. Mr. Hakim is also logged in there, mummy said. Okay. Okay, so that is the reason I thought maybe some they are busy or something because that's why they didn't join. So where did you guys get the meeting link? In our group, Binita ji said that is the link. Yeah, but that is the of a morning 5:30. Yeah, I saw that the timing was morning 5:30 Indian time. And in morning I did also that class. Okay, so should we wait for them or should we just go on? As you say. Okay, now they are joining in. I feel so sorry for them that they are in the wrong class and they are like. Till then someone wants to share anything, then we can go on for that also. Yeah, any problem they can ask any question. Okay, so yeah. Okay, so now many people joined. Just in few words starting से आप एक बार clarify कर दो सबको. हाँ, clarify करती हूँ. Okay, so we started this. બીજા જ એના પર જોઈન થઈ ગયેલા હું રેહાના બેન હકીમભાઈ. अच्छा. That's again a magic. એ તો બધું પૂછ કર્યા કરે કોણ આમ કરવાનું આમ બધાના હાથ ને વિડીયો ઓન જ રાખો ને બધાને ક્વેશ્ચન છે તમારો શું ફાયદો થયો ને બધું પૂછ્યા કરે. कंफ्यूजन हो गया ना किसी वो लिंक भेजने की वजह से. कोई बात नहीं, चलो. तो ये आज हमने ये चैप्टर चालू किया. 3-4 पे मतलब पढ़ भी लिए एक्चुअली, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको. अगर रिकॉर्डिंग भी देखना है तो आप देख सकते हो जाके. तो ये आज का जो चैप्टर है मैजिक डस्ट एवरीवन. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मैजिकल स्पार्कल्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवंस अबोव, और वो किनके ऊपर है? ये सब लोगों के ऊपर मैजिकल स्पार्कल्स आ रहे हैं. और ये कोई पब्लिक प्लेस है, या तो ट्रेन स्टेशन है या तो एयरपोर्ट है, और सभी के ऊपर मैजिक डस्ट है. तो आज का जो चैप्टर है ये इसी के बारे में है. इसमें जो सेंट एम्ब्रोस ने बोला कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स. यानी कोई भी ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है जितना हमें थैंक्स को रिटर्न करना है. आगे भी हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने वो बोले कि
हमारी ये जो भी लाइफ है ये किसी न किसी की वजह से ही है। तो हमें सभी लोगों को थैंक्स बोलना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी हम मान लो हम अपनी फैमिली के लिए तो सब बोल रहे हैं, थैंक्स बोल रहे, ये है वो है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बोल रहे, कलीग्स के लिए भी बोल रहे। अभी आज हमें किनको थैंक्स बोलना है? जिनके साथ भले हमारा कोई रिलेशन नहीं है, पर जिनके पास हम हमेशा कुछ ना कुछ सर्विसेज लेते आए हैं, पास्ट में भी और अभी भी लेते रहे हैं। तो ये सबको जाके हमें थैंक्स बोलना है। और ये थैंक्स बोलना एक तरह का क्या क्या है कि गिविंग थैंक्स इन रिटर्न। जो भी आपने ऑलरेडी पाया है उसके लिए भी थैंक्स बोलना है, और आगे पाने के लिए जो अच्छी बातें आपकी लाइफ में लाने के लिए भी आपको अभी उनको थैंक्स बोलना है। क्योंकि ये हमेशा गिव एंड टेक होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो भी हम देखते हैं वो असीमભાઈ हमें ને मिलता है। सॉरी, અલેપ્યા અસીમભાઈ બી જોઈન થઈ ગયેલા છે, એ તો ક્વેશ્ચન કરે. इट्स ओके। चलो कोई તમારાથી નહીં થઈ શકતું. सबको थोड़ा वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, कोई बात नहीं। तो ये અસીમભાઈ ને जो કહી દે એમાં જોઈન. इट्स ओके, इट्स ओके। सब लोग कुछ लिंक ढूंढ रहे होंगे और वो लिंक पे क्लिक करके उन्होंने वो लिंक ज्वाइन कर दी जो इन्होंने सुबह भेजी थी। कोई बात नहीं, चलो। तो ये जो रिटर्निंग थैंक्स है वो इतना ही जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई अभी गुड रुका हुआ है तो ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने कभी कोई सर्विसेज जिनके पास से लेते हो उनको आपने कभी थैंक्स बोला ही नहीं है। तो आज की ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी लोगों को थैंक्स बोलना जिनसे आपने सर्विसेज कलेक्ट की है पास्ट में और अभी भी कर रहे हो। जैसे अगर आप जॉब करते तो जॉब में ऑफिस बॉय है या कोई भी जो भी क्लीनिंग स्टाफ है उनको आपको थैंक्स बोलना है। अगर जो रोड्स क्लीन करते हैं उनको थैंक्स बोलना है। रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो वेटर से आपके लिए वेट करते हैं, आपका ऑर्डर लेते हैं, फिर खाना आपके लिए लाते हैं, टेबल्स क्लीन रखते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो उन सभी को भी आपको थैंक्स बोलना है। उसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिक सर्विसेज है या पानी, गैस, वाटर, जो भी सर्विसेज है जिनका मेंटेनेंस सब लोग करते हैं, जिनको हम देख तो नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, पर बैक एंड में भी वो ये सब काम करते हैं जो मेंटेनेंस का काम होता है। ये ट्रेन्स को मेंटेन करने वाले या एयरप्लेन को मेंटेन करने वाले लोग जो हमेशा ये सब चीजें हमारे लिए करते हैं, भले वो पैसे लेते या नहीं लेते उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट वो ये सर्विसेज कर रहे तो ही हम ये अच्छी तरह लाइफ जी पा रहे हैं। अगर आप कोई पब्लिक बाथरूम्स में जाते हो, जब भी आपको क्लीन मिलता है, प्लीज उनको थैंक्स बोलो जिन्होंने भी उनको इतना मेंटेन किया हुआ है। तो सभी जगह पे कहीं कितनी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे हम सर्विसेज रिसीव करते हैं सभी लोगों से, तो उनको थैंक्स बोलना भी बहुत जरूरी है। उनको आप कैसे थैंक्स बोलोगे रोंडा बन हमें सिखाएगी, पर जैसे ब्लेसिंग्स देना है, मैजिक डस्ट देना है उनको। ओके, और एक बात समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जहां पे भी हमारा अटेंशन जाता है, जहां पे भी हमारा विचार जाते हैं, वहां पे एनर्जी फ्लो होती है। ओके, सो आपको ये एनर्जी उनको आज भेजनी है सभी लोगों को, ठीक है। जो एलिवेटर्स, बसेस में जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रेन के अभी जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी तरीके से डिजर्व करते हैं, जिनको हमने पहले कभी ग्रेटिट्यूड नहीं भी दिया। ऐसा भी होगा कि हमने उनको कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं है आज तक। तो आज ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज आपको देखना है अपनी अपनी खुद की लाइफ में कहाँ कहाँ से आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, उन सभी को आपको आज मैजिक डस्ट देना है। ओके, सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? Everybody is clear until now? Yes, yes. Okay. So यहाँ से हमने ये सब पढ़ लिया अभी तक।
तो इन्होंने जैसे सुपरमार्केट्स में भी जो होते हैं, जो लोग काउंटर पे होते हैं, आपका बिलिंग वगैरह करते हैं, उनको भी आप मैजिकल डस्ट हमेशा ही भेजो जब भी आप जाते हो। ये भले आज की प्रैक्टिस है, पर इसको अभी प्रैक्टिस में, हैबिट में ला देना, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है आपकी लाइफ के लिए। ओके, सो हाँ, तो यहाँ से ये हमने पढ़ When लिया। you हाँ you are हाँ, सो व्हेन यू आर एट कैफे और रेस्टोरेंट, वहीं से पढ़ना है ना? हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। when you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glasses with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you the change, remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. यस, सो मैं अपनी एक खुद का एग्जांपल देती हूँ कि जब यानी थोड़ा टाइम हुआ जब मैंने ये नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और थोड़ा फिर करती रहती थी। तो एक बार मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट में फूड लेने चली गई, तो वहां पे जैसे उस टाइम पे कोविड तो चल ही रहा था, तो वहां पे बैठ के खाने का वो नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसे ही हम लोग अंदर चले गए और हमें ऑर्डर करना था, मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए थे। तो जब हम ऑर्डर कर रहे थे और मैं इतनी वो मैजिकल डस्ट उनके ऊपर डाल रही थी, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ कि जो भी वो पर्सन था जिसने हमारा ऑर्डर लिया, वो उसने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बहुत कुछ बताया वहां पे। हम, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो हमें पता भी नहीं था कि हमें क्या ऑर्डर करना है, कौन सी अच्छी चीज है। वो सुशी रेस्टोरेंट था, तो हमें सुशी के मामले में इतना ज्यादा पता नहीं था कि हमें क्या एक्चुअली ऑर्डर करना है। पर पता नहीं मैजिक डस्ट करने के बाद जो स्पेशल तरीके से उसने हमें ट्रीट किया है, मैं क्या बताऊं आपको। उसके बियॉन्ड एंड अबोव जाके वो बंदे ने हमारा ऑर्डर लिया, और जो भी उसने मतलब जो भी सर्विसेज थी, वो सर्विसेज इतनी एनहांस होके हमें मिली थी उस दिन। मुझे अभी भी वो दिन याद है, मेरे बेटे को भी वो याद रहता है, क्योंकि वो भी कभी कभी बोलता है कि हाँ मम्मी, उस दिन उन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी वो चूज करने के लिए। और जो उन्होंने जो हमने जो ऑर्डर भी उनको दिया वापस, मतलब जो भी हम खाना भी लेके आए थे, वो भी बहुत ही अच्छा था उस दिन। क्योंकि मैंने उनको भर भर के, इवन बिफोर वी स्टार्टेड, आई ऑलरेडी पेड सो मच ग्रेटिट्यूड। जब वो मेन्यू ला रहा था तब तक ही मैंने उनको इतना ग्रेटिट्यूड किया था, और उसका रिजल्ट मुझे वहीं पे मिल गया था। और ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है हमारी, मैं जब जहाँ पे काम करती हूँ वहां पे रोज रोज लोग ट्रैश लेने के लिए आते हैं, उनको मैं हमेशा बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो अभी जो पहले वो हम मेरे साथ उनका मतलब जो भी एनकाउंटर होता था और अभी जो होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। तो ये अभी ये हम सीख गए, चलो पहले हमें नहीं पता था। वैसे तो हम, हमारी आदत होती है कि चलो हम ऐसे ही कभी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, पर ये एक अलग प्रैक्टिस है। इसमें आप किसी के लिए एक अलग तरह का कंपैशन फील करोगे। जो भी बंदा है, अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं भी कर रहे, तो भी आप अपने उनके साथ कंपैशन फील कर पाओगे, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जरूर करना और आपको रिजल्ट जरूर पक्का मिलेगा जब आप देखोगे। तो यानी जब आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको बहुत ही अच्छा, और हमें हमें खुद को भी बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है जब अब किसी को भी मैजिक डस्ट देते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। तो ये जरूर करें, जहाँ पे भी आप जाए, जहाँ पे भी कोई किसी की सर्विसेज आपको मिल रही है, पक्का 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 उनके तरफ मैजिक डस्ट भेजे। ओके, लेट्स रीड फर्दर। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin
crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing a plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. It's completely a miracle that we can fly nowadays. I stay in US. There was a wedding of my brother in February. I decided all of a sudden around like 15 days ago, because the COVID and everything was going on at that time. Even the wedding was also kind of like planned very instantly. So what I'm trying to say here is कि ये जो भी एयरप्लेन की जो सर्विसेज है, जब भी हम एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं उनको ये यानी कितना ये मैजिकल है कि हम एक तो सबसे बड़ी बात इतना मीलों मीलों ट्रैवल कर सकते हैं। इतना मैं यहाँ से इतना दूर मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने ट्रैवल किया इंडिया में 24 आवर्स जिसमें एयरप्लेन में लगते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। जैसे वो पॉसिबल ही नहीं था एयरप्लेन के बिना। जो राइट ब्रदर ने ये खोज की है, तो राइट ब्रदर्स को भी एक्चुअली तो हमें थैंक्स बोलना जरूरी है कि उन्होंने ये जो इन्वेंशन की है, इनकी वजह से आप कहीं पे भी रह सकते हो लाइफ में और कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। और जब ये इस टाइम पे मेरी जो ट्रिप थी आफ्टर दिस मैजिक बुक, मेरी ट्रिप इतनी जबरदस्त थी इस बार, क्योंकि मैं हमेशा ही किसी न किसी को मैजिक डस्ट भेजती रहती थी, वेदर इन द एरोप्लेन, अभी एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, कहीं पे भी हूँ, क्योंकि ये बुक ने मुझे सिखाया था, तो मैं मैजिक डस्ट भेजती थी। मेरी पूरी ट्रैवल इतनी आसान थी। जो भी चीजें भी अगर कुछ आई, जब मैं एक और बात मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जब मैं वहां से आई वापस आई इंडिया से, तो उस टाइम पे 15 फरवरी कुछ उसका था डे था। तो 15 फरवरी को यहाँ यूएस में बहुत ज्यादा स्नो था सभी जगह पे। तो जो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी शिकागो से यहाँ तक की, वो कैंसिल हो गई थी। और इवन एयरप्लेन में भी मेरी my daughter was with me, so we both traveled. My husband and my son didn't travel with us, so हम दोनों ही थे। उसको एयरप्लेन में बहुत थोड़ी सी वॉमिट वगैरह भी हुई थी, यानी पता नहीं थोड़ा उसको क्या था खाने की वजह से, जो भी उसको सो नहीं पाई थी शायद 2 दिन से, इसलिए उसने 3-4 बार उसको वॉमिटिंग वगैरह भी हुई। हमने लैंड किया सुबह 7 बजे, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। पर बिकॉज आई वॉज पेइंग सो मच ग्रेटिट्यूड एट एवरी मोमेंट, मैं उस टाइम पे इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मुझे दूसरे दिन की फ्लाइट मिल रही थी, उस दिन की फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी। और नेगेटिव टेम्परेचर्स था यहाँ पे शिकागो में। इट वॉज अराउंड लाइक -20 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी बाहर निकलोगे तो आप मतलब फ्रीज हो जाओगे, ऐसी हालत थी। उस टाइम पे मैंने वहां से रेंट की, मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प कर दी, सब जो भी चीजें थी मैंने गाड़ी रेंट की, और वो स्नो में मैं चला के यहाँ पे आई। और वो सब कुछ मैं वैसे नहीं कर पाती अगर मेरे साथ ये बड़ी पावर नहीं होती तो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कंफ्यूजन भी था कि मैं क्या करूं, यहाँ पे होटल रह के रुकूं या फिर मैं ऐसे रेंट कार करके मैं खुद ड्राइव करके जाऊं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे उस टाइम पे। तो जब मैंने अंदर मेरे अपने आप को पूछा भी, तब भी मुझे ये आंसर भी मुझे अंदर से ही मिला कि हाँ मुझे क्या करना है। ये एक आंसर भी वहां एयरपोर्ट पे खड़े खड़े मुझे मिल गया। और उसके बाद मैं वो करके आई रेंट करके, और रेंट करने के बाद मुझे 8 घंटे लगे यहाँ पे आते, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था और स्नो की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी।
और मैंने सभी को भी इतना मतलब ग्रेटिट्यूड दिया कि उनकी वजह से एटलीस्ट जो जो रोड्स भी क्लीन मिल रहे थे। सोचो इतना बहुत मतलब ठंडी है बाहर, इतना जबरदस्त वो है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स है, उसमें भी लोग आके वो रोड्स क्लीन करते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अभी हमें कोई पैसे भी देगा तो हम ये काम नहीं करेंगे, इतनी ठंड होती है बाहर। तो भी जो लोग हैं, ऐसे लोग, इतने अच्छे लोग हैं लाइफ में, जो ऐसे टाइम पे भी आके जो भी, भले वो जो भी पहन के जो भी करते हैं, उनका जो भी काम है, वो आके वो रोड्स क्लीन करते हैं। यहाँ यूएस में जब भी स्नो होता है, मैं जब भी सुबह मेरी 7 बजे की जॉब होती है, 5 बजे भी मैं जाती हूँ, मुझे सारे रोड्स क्लीन मिलते हैं। ये एक मुझे लगता है कि जैसे एक मैजिकल है ये, इतना मुझे मैजिकली लगता है। हमेशा मैं जब भी जाती हूँ तो रोड्स क्लीन होते हैं, जो भी हाईवेज वगैरह है। जैसे मान लो हमारा खुद के यहाँ पे कोई कोई अंदर वाले रोड है, वो उस पे बर्फ होती है, पर जो हाईवेज पे जाते हैं तो वो रोड्स क्लीन मिलते हैं। क्यों? किसी न किसी ने तो वहां पे ये सर्विसेज दी है। तो जैसे उस दिन भी मैं शिकागो से सुबह में शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंची थी। इतनी नींद हमारी कभी कभी एयरप्लेन में होती है, नहीं होती है, तो भी मैं पहुंच पाई थी ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। लेट मी टेल यू, it's nothing, none of that is going has been with me anything like। इतने अच्छे से मुझे जो कार भी मिली थी, वो इतनी जबरदस्त कार मिली थी कि उसका ग्रिप इतना अच्छा था वो स्नो के ऊपर। नहीं तो सोचो इतना 8 घंटे, वैसे शिकागो का ड्राइविंग आवर्स कितने लगते हैं, जैसे अगर आप नॉर्मल टाइम पे जाओ तो जाने में 5 घंटे लगते हैं, उस दिन मुझे 8 या 9 घंटे लग गए थे। तो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सही सलामत घर पे पहुंच गई थी, बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए हमेशा ये काम कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। एयरप्लेन में है या जहाँ वहां पे एयरपोर्ट पे भी जब बैग्स वगैरह आती है, वहां पे भी 2 बंदे खड़े थे जो बैग्स को ऐसे ही अच्छी तरह से रख रहे थे। उनको भी मैंने वहां पे इतना ग्रेटिट्यूड पे किया कि कितना ये जब पूरा देखोगे तो ये एक तरह का ऑर्केस्ट्रेशन ही होता है। कहीं पे भी आप जाते हो, देखना कि ये पूरी सिस्टम काम करती होती है हमारे लिए। ये सिस्टम हमारे लिए ही काम कर रही है, so that we can travel safely, so that we can travel cleanly, so that we can travel to our own destinations। तो जब भी आप अगर आप जब भी फ्यूचर में भी कभी आप एयरप्लेन में ट्रैवल करते हो या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बस में कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, कोई कहीं पे भी आपको कोई सी भी सर्विसेज मिल रही है, उसके लिए थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। उससे आपकी भी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी आप इतना स्ट्रगल करते रहते हो, इससे अच्छा है थैंक्स बोल दोगे, तो वो टाइम पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई भी है, पर आप अपने ग्रेटिट्यूड में इतने बिजी होते हो कि वो नेगेटिविटी आप बढ़ा नहीं पाते हो, उसको आप नहीं बढ़ा सकते उस टाइम पे, वहीं पे वो खत्म हो जाती है जो भी नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए ये सब चीजें एक प्रैक्टिस लगती है, इसमें ये हैबिट बनानी पड़ती है इनिशियली। तो प्लीज आप ये हैबिट बनाएं। मैं उस टाइम पे वैसा भी करती थी कि कभी कभी अगर भूल भी जाती थी तो मैं लिख देती थी। मेरी हमेशा एक छोटी सी पॉकेट बुक में अपने उसमें हमेशा रखती थी। अगर ये इन मेरे मम्मी इन लोग से आप पूछोगे तो उनको पता है, मेरे पास हमेशा ये बुक रहती थी, और मैं निकाल निकाल के लिखना चालू कर देती थी। जहां पे भी मैं ट्रेन में भी अगर ट्रैवल करती थी तो मैं ट्रेन में भी वो बुक लेके बैठ जाती थी। अच्छा है ना, कोई और चीजें मैं सोचूं, इससे अच्छा है मैं ग्रेटिट्यूड लिख दूं। मैं तो वैसे भी अंदर बैठी हूँ ऐसे ही ट्रेन में जब ट्रैवल कर रही हूँ, या एयरप्लेन में मैं अगर बैठी हूँ 24 घंटे, तो मेरे पास और तो कोई काम है नहीं वहां पे। तो कितना अच्छा लगता है जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे भी। तो जो भी हुआ था उस टाइम पे, मेरी बेटी को जो भी थोड़ा वो वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, तो भी मैं हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में थी, और मुझे इतना पक्का पता था कि कुछ भी होगा मैं आराम से सही सलामत घर पे पहुंच जाऊंगी, जो भी वो सिचुएशन थी।
only and only because of gratitude practice. Okay, let's see it further. विनीता जी आप म्यूट पे हैं. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaner, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Yes, so सभी को आपके वर्क कलीग्स है उनको भी आप मैजिक डस्ट डालो जब भी आप काम पे हो. यानी कस्टमर सर्विस को जिनको आप कभी कभी फोन भी करते हो, उस टाइम पे मैंने जिनको कॉल किया था और मेरी टिकट्स करवाई थी उनको भी मैंने बहुत सारा मैजिक डस्ट किया था. उनके लिए जब मैंने पे भी किया था तो उनको मैंने टिप भी दे दी थी कि बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे जो भी उस टाइम पे था टिकट्स फाइंड करके दी थी कोविड के टाइम पे. तो और एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने मेरे लिए फाइंड आउट किया था. तो उनको भी मैंने बहुत मैजिक डस्ट भेजा था. तो आप भी ये कर सकते हो. जब भी आप कोई कस्टमर कॉल में भी बात करते हो तो उनको एटलीस्ट वहां पे तो थैंक यू बोलते ही हो. उनके सामने जब बात करते हो तो और जब थैंक यू बोलते भी हो तो बोलो कि आप किसकी वजह से थैंक यू हो, क्यों आप उनको थैंक यू बोले. तो उसमें फिर ज्यादा आप फीलिंग्स आ जाती है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने कोई कारण भी बोला उनको. तो ये बहुत ही अच्छी एक ये हैबिट होती है जो आपको बिल्ड करनी है अभी, नाउ ऑन. ओके, सो लेट्स रीड. Be grateful. Store assistants, waiters, or waitress work are very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people. And serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son of her parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and her children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. सो ये बात भी एक समझने की बहुत जरूरी है कि जो भी लोग काम करते हैं, जो भी सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं, उन्होंने ये चूज किया है लाइफ में. बराबर, ये उन्होंने एक प्रोफेशन जो भी है वो उन्होंने चूज किया है अपनी लाइफ में कि टू सर्व अदर पीपल. और सर्व करने में क्या होता है, इतनी सारी पब्लिक के साथ उनकी रोज एनकाउंटरिंग होती है. जैसे एयरप्लेन क्रू को ले लो आप, तो सभी लोग कितने सारे लोगों को एनकाउंटर करते हैं रोज, कितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मिलते हैं. तो कोई ना कोई कभी अपना गुस्सा भी उनके ऊपर उतारता होगा, कभी कोई किसी का घर में झगड़ा हुआ है तो गुस्सा जाके इन पे निकालते होंगे, होता होगा, हमें पता नहीं है. तो ये भी बेचारे लोग हैं, ये भी किसी के सन डॉटर या किसी की वाइफ, किसी के मम्मा, किसी के पापा, जो भी है. तो ये भी पर्सन है, ये भी इंसान है, उनको भी किसी का तो लव एंड एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है. तो आप वो चैनल बनो. अभी आप वो चैनल बनोगे जो हमेशा इनको अच्छे से मैजिक डस्ट भेजोगे. अगर मान लो कोई क्रू ने आपके साथ कोई बदतमीजी भी की है, बैड बिहेव भी किया है, तो भी आप अंदर से कंपैशन की तरह उनको सोचो कि हाँ चलो उनका भी आज पता नहीं घर में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज भी होती हुई होगी जो मे बी उन्होंने किसी को लूज कर दिया आज, या उनके तो भी उनको काम पे आना पड़ा उस टाइम पे, या तो कभी घर में कोई बच्चे बीमार है तो भी उनको काम पे आना पड़ा. यानी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से वो अपसेट हो सकते हैं उस टाइम पे, या निराश हो सकते हैं, लाइफ में कुछ भी हो सकता है. पर आपका ये एक मैजिक डस्ट क्या पता उनकी लाइफ में थोड़ी सी वो स्माइल उस दिन ले आए, क्योंकि आपकी जो लविंग एनर्जी वे है, जो आप लविंग एनर्जी उनको भेज रहे हैं, वो पक्का उनको मिलती है. ये तो पक्की बात है. जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का भी वो जो एग्जांपल दिया था,
उसमें ऑलरेडी जो मैजिक डस्ट की वजह से वो पर्सन था, वो ऑलरेडी उसने बहुत ही मतलब अलग तरीके से वो पेश आया था उस दिन। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो एनर्जी उसके तरफ भेज दी थी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई अच्छे से पेश नहीं भी आता है आपके साथ, तो भी आप उनको मैजिक डस्ट भेजो। ओके, ये सबको क्लियर है, राइट? I believe. Okay. So yeah, let's read further. आप म्यूट पे हो बिना। Times हाँ। you may encounter person आपका नेट चला गया, क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोगों को सुनाई दे रहा है? विनीता जी पढ़ रहे हैं कुछ? नो, ओके। या सो विनीता जी आपकी आवाज नहीं रही, चलो मैं ही पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। So at times you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. So ये तो समझ लो कि आपकी एनर्जी, आपकी जो भी लविंग एनर्जी होगी वो पक्का पक्का उनको मिलेगी, और उनकी वजह से क्या मालूम आप उनका दिन अच्छा हो जाए उस दिन। अगर वो अपनी टिपिंग पॉइंट पे है कोई ऐसी अपनी लाइफ में, क्या मालूम कि उनका वहां से ही कुछ अच्छे दिन स्टार्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैजिक डस्ट। तो ये हमेशा याद रखे, जब भी अगर आप कोई ऐसा एनकाउंटर होता है कि पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया, मतलब या तो आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा, उसने नहीं किया, तो भी आपका ग्रेटिट्यूड इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कैसा वो पर्सन बिहेव कर रहा है। आपका ग्रेटिट्यूड तो आप जो सर्विसेज रिसीव करे, और आप जो अच्छे इंसान हो, आप अंदर से अच्छे इंसान हो, आप किसी का भला करना चाहते हो, उस पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो सामने वाला बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर अंटिल नाउ। तो किसी को भी आपको जब भी आप कंपैशन की तरह सोच के उनको मैजिक डस्ट देना है, ऐसा सोचना है कि बैकग्राउंड में इनके साथ क्या क्या हुआ हो सकता है, आपको नहीं पता है। जैसे एक व्हाट्सएप पे भी कोई एक थी स्टोरी सर्कुलेट हो रही थी कि कोई डॉक्टर आया और बेचारा घर पे उसके सन को या वाइफ को लूज करके वो जस्ट आया था वहां पे, और किसी बंदे का कुछ मतलब हुआ था और ऑपरेशन या ऐसे कुछ करना था, तो वो वहां पे लेट पहुंचे कोई वजह से, ये कोई रीजन की वजह से। तो उनको वो लेडी जो भी थी, उन्होंने अच्छा भला बुरा सुना दिया, और उसके बाद जब वो ऑपरेशन हो गया, वो बंदे की जान बच गई, उसके बाद उसको पता चलता है कि यार उन्होंने तो अपने खुद का बेटा आज लूज किया है। यानी ये कितनी बड़ी बात होती है कि जो भी सर्विस देते हैं जो लोग, वो कोई भी हालत में वो सर्विसेज हमें देते हैं, उसके साथ उनका ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है उस पर डिपेंड भी नहीं करता है वो चीज। पर आपको अगर ऐसा कुछ एनकाउंटर होता है तो हमेशा कंपैशन फील करें, जो क्या बोलते हैं, करुणा फील करें उनके लिए, और हमेशा ही सभी को मैजिक डस्ट भेजें। ओके, लेट्स रीड। सो मिनिता जी, इज योर
Yeah, my voice is audible. Yeah, now it's audible. Yeah. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, Circa 20 BC, AD 50 philosopher. Mhm. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you were grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way. Thank you for giving me much of your time. Thank you for resolving the solution for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one because they feel your sincerity. या जब आप किसी को सिंसियरली किसी को ग्रेटिट्यूड भेजते हो, अभी कभी कभी आप क्या होता है कि आप थैंक यू बोलते हो, ओके चलो ऊपर ऊपर से बोल दिया। अभी ये क्या होगा कि आप जब सिंसियरली किसी को ग्रेटिट्यूड बोलोगे, भेजोगे, उसके सामने बोलोगे, तो डेफिनेटली दे कैन फील इट। ये आपको भी पता चलेगा कि हाँ वो फील कर रहे हैं, उनके फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, उनको आपको लगेगा ही कि हाँ वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये भी सिंसियरिटी आपकी यहाँ पे दिखेगी। अभी मान लो कि इनिशियली आपको फेक भी करना पड़ रहा है तो करो, धीरे धीरे फीलिंग्स अपने आप आ जाएगी। ओके, लेट्स रीड। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. या सो किसी को भी अब जब अगर आप थैंक यू बोल रहे हो उस टाइम पे, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। और अगर आपको उस टाइम पे अच्छे से कोई रीजन भी बोलना है तो आप वहां पे बोल सकते हो, यानी रीजन दोगे तो ही सिंसियरिटी उनको भी लगेगी और आपको भी फील, मतलब आपको भी अंदर से फील होगा। तो ये हमेशा ये भी बहुत जरूरी है। एक और चीज नोटिस करना कि आप जब सिंसियरली किसी को ग्रेटिट्यूड करते हो तो अपने आप ही आप उनको आंखों में देख के बात करोगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब वो बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि अब अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हो तो आप उनकी आंखों में आंख डाल के बात करें। ऐसे नीचे देख के बात करोगे तो आपकी सिंसियरिटी उनको नहीं पता चलेगी। तो उसी तरह से सेम वे यहाँ पे भी आपको उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको अच्छी तरीके से थैंक यू बोलना है। ऐसा नहीं कि आप फोन पे लगे हो और थैंक यू बोल रहे हो। ओके, सो अब यहाँ पे रोंडा बर्न अपनी खुद की स्टोरी सुना रही है, तो पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant. Swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. या सो कभी Every ऐसा action. भी होता है कि आप जब इतना सिंसियरली इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ देते हो अगर किसी को ग्रेटिट्यूड, और उनको रीजन भी बताते हो,
तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो उनके फीलिंग्स उनकी आंखों में ही झलकती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, कि इतने अच्छी तरीके से उन्होंने उनको ग्रेटिट्यूड फील करवाया, मतलब बोला कि वो उनके आंख में आंसू आ गए। तो ऑफ कोर्स आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होगा कि सामने वालों को आप सिंसियरली ग्रेटिट्यूड देते हो, ग्रेटफुल फील करते हो उनके लिए, और सिंसियरली उनकी आंखों में आंखें डाल के आप जब थैंक यू बोलते हो तो आप देख सकते हो कि इतनी खुशी होगी उनके फेस पे। मैंने ये बहुत बार एनकाउंटर किया है कि सामने वाले पर्सन की आंखों में इतनी खुशी झलकती है, कभी कभी हल्के हल्के से आंसू भी आ जाते हैं उस टाइम पे, कि कितनी अच्छी तरीके से किसी ने उनको इतना अच्छे से ये एहसास दिलाया कि हाँ उनका जो काम है, वो जो भी कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो इन्होंने, रोंडा बर्न ने अपनी खुद की स्टोरी यहाँ पे सुनाई थी। वो किसी स्टोर में गए थे, उनको इनकी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदना था, और वहां पे इन्होंने, उनको ये स्टोर असिस्टेंट ने बहुत ही अच्छे से हेल्प कर दी थी। और वो जब निकली तब कोई फोन आ रहा था, तो वापस जाके अंदर उन्होंने थैंक यू बोला उस लेडी को। ओके चलो, तो नेक्स्ट रीड फर्दर। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. या I सो don't use जो magic. एक्शन और रिएक्शन जैसे होता है, उसी तरह से जब आप किसी को देते हो, मैंने आगे भी बताया कि आप खुद बहुत ही अच्छा फील करोगे, आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी किसी और के फेस पे खुशी लाके। तो ये भी एक एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छे, मतलब किया ही होगा आपने कभी कभी एक्सपीरियंस, पर अब ये आप कॉन्शियसली करोगे, जब आप अपना अवेयरनेस लाके करोगे तो वो भी एक अलग चीज होती है। ओके लेट्स रीड। I don't use magic dust only on people who serve. I use gratitude magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in a particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. तो इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर होते होंगे जहाँ पे आपको लगता है यार कैसे ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी ये सोचने की जगह पे उनको मैजिक डस्ट भेजो, जो भी है। देखना ये जैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अगर बहुत सारे लोग अगर ऐसा करने लग जाए और ऐसा सोचने लग जाए, तो बहुत सारा जो ट्रैफिक वगैरह जो होता है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो जैसे रोंडा बर्न ने इनमें इसमें बोला कि वो हमेशा मैजिक डस्ट नॉट ओनली फॉर सर्विस पीपल, वो बहुत सारी ऐसी चीज के लिए वो अपने ये मैजिक डस्ट वो स्प्रिंकल करती है। जैसे उनकी डॉटर अगर घर जा रही है तो सही सलामत पहुंचने के लिए, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर वो चालू करती है तो अपने कंप्यूटर को मैजिक डस्ट भेजती है। यानी बहुत सारी चीजों में आप भी यूज कर सकते हो अपना ये मैजिक डस्ट फॉर्मूला। ओके सो लेट्स रीड फर्दर। आप म्यूट पे हो भी नहीं सकते। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on every by saying thank you. Thank you at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter
If you don't get the opportunity to do it in a person, you can mentally acknowledge the person whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of dust every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 10 लोगों को ऐसे लेना है जिन्होंने कहीं ना कहीं पर आपको सर्विसेज दी है, या अगर आप बाहर जाते हो कोई काम के लिए, अगर आप बाहर जा रहे तो ये बाहर भी आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को ले लो और उनको मैजिक डस्ट भेजो। यहाँ पे इन्होंने 10 लोगों को एटलीस्ट लिस्ट 10 लोगों को करना बोला है, पर आप जितने चाहो इतने लोगों के साथ ये मैजिक डस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप घर पे हो, कहीं पे नहीं जा रहे हो, तो एटलीस्ट लिख दो 10 लोगों को। मान लो आपके घर पे कोई काम वाले आते हैं, उनके लिए लिख दो, या फिर आपका जो रोड्स क्लीन करते हैं उनके लिए लिख दो, यानी बहुत सारे लोगों को आप लिख सकते हो। Okay, let's see. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. सो ये हमेशा ही, ये तो सर्कल तो घूमता ही है। तो जो भी है, आप अगर किसी को सिंसियरली ग्रेटिट्यूड फील करते हो, किसी के बारे में किसी को ब्लेसिंग्स भेजते हो, तो आपको ऑफ कोर्स वो आपके पास रिटर्न तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who is determined to resolve a problem for you. Maybe you have received a great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you, and send magic dust by saying thank you to every one of them. सो ये प्लीज ये वाली प्रैक्टिस को डिस्काउंट मत करना। ये भी इतनी ही जरूरी है जैसे आपकी कोई मनी प्रैक्टिस है या हेल्थ प्रैक्टिस है, इतनी ही जरूरी ये भी प्रैक्टिस है, बहुत ही जरूरी है आपकी ओन लाइफ में मैजिक लाने के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट भी है जो आप इनकलकेट करोगे। ये प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है, ये याद रखना और ये प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप घर पे हो, नहीं जा रहे हो, तो एटलीस्ट लिख दो 10 लोगों के लिए कि जो भी सर्विसेज में आप काम कर रहे हैं उनके लिए आप 10 चीजें लिख दो, क्यों आप ग्रेटफुल हो और किन के लिए आप ग्रेटफुल हो। और इमेजिन भी करो उस टाइम पे कि उनके ऊपर ये मैजिक डस्ट जा रही है और उनकी लाइफ में भी वही प्रॉस्पेरिटी और उनकी लाइफ में भी ऑल द गुडनेस इज कमिंग इन द लाइफ। तो ये भी इमेजिन आप कर सकते हो। और ओके, सो ये यहाँ पे एक मैजिक रिमाइंडर है कि टुमारोज प्रैक्टिस आज आप पढ़े, पर आप लोगों के लिए तो वैसे भी वो कल ही होगी, तो ये पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड दिस प्रैक्टिस नंबर 10। Magic practice number 10. Magic dust everyone. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second,
Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally or acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. they perform. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Read through thorough tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Okay, so सबको अभी क्लियर है ना आज क्या मतलब कल आपकी प्रैक्टिस में क्या करना है? Yes. ओके, और सबने कल की प्रैक्टिस की जो कल हमारी प्रैक्टिस थी बिल्स के बारे में? ओके ओके परफेक्ट. किसी को कोई क्वेश्चन आया उसके जब करते टाइम पे कोई क्वेश्चन आया हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो लेट्स रीड अवर पावर बुक. Actually, maybe let's just skip the power book for today because we are already too late today. So we will read this tomorrow. Okay, this is a new chapter actually, feeling frequencies. So we will start reading this chapter from tomorrow. If you all have okay with that, yeah. Yes, it's okay. Yes, okay. So let's read our heart thought. So today's heart thought again is very, very nice heart thought, and it actually teaches you how you can be always loving and send the light, send the shining bright light for yourself. Okay, I will mute Benita ji. Okay. Even in the situations which are you're not expecting. Okay, so a tragedy can turn out to be our greatest good if we will approach it in a ways from which we can grow. So tragedy हमारी लाइफ में अगर आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है. उसमें से भी हम कुछ कहीं पे ऐसा होता है कि ट्रेजेडी में से ही बहुत ही बड़ा कुछ ग्रेटेस्ट बाहर आता है. Okay, so I let the light of my love shine. When we are in pain or afraid or grieving, and we see a light in the darkness, we don't feel so alone. Let's think of this light as someone's love shining. It gives us warmth and comfort. Each of us has the light of our love within us. We can let our love shine, our light shine. So it will comfort us and be a great comfort to others. We all know people who have passed on. See now their light shining, and let their light and love surround us and comfort us. Each one of us has an infinite supply of love to give. The more we give, the more there is to give. Yes, sometimes it hurts to feel, but thank God we can feel. Let the love come radiating from our hearts. Be comforted and be at peace, and so it is. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी पेन में भी हो, कभी कुछ ग्रीविंग में भी हो, आप अलोन फील कर रहे हो, डार्कनेस में हो, तब भी आपको ये जो एक लव है, जो परमात्मा का भी प्यार है और आपके अंदर जो बसा हुआ है, वो आपको हमेशा एक लाइट की तरह आपके लिए बनेगा. सो अभी क्या है, हम कभी कभी क्लोज माइंड हो जाते हैं. ये लव को शाइन करने के लिए हमने जगह दी ही नहीं है. पर जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि हाँ, ये एक तो शक्ति है, परम शक्ति जो हमारे अंदर है, जो हमेशा हमको आगे बढ़ा रही है, तो जैसे ही कोई ऐसे हालात में होंगे जो ट्रेजेडी जैसा लग रहा है, जो बहुत पेन दे रहा है या हर्ट कर रहा है किसी भी तरह से, तो उस टाइम पे भी जब आप ये याद करते हो कि हाँ, लव तो आपके अंदर है, और जैसे ही आप ये अवेयर हो जाते हो कि हाँ, लव मेरे अंदर है,
तो वो आपको ग्रेट कंफर्ट देगा। ओनली आपको ही नहीं देगा, वो बहुत सारे अदर पीपल को भी देगा जो आपके आसपास है। तो ये जो लव है, ये इसका अनलिमिटेड सप्लाई है, इनका इन्फिनिट सप्लाई है। जितना आप दोगे इतना आपको और वापस मिलेगा देने के लिए। तो एटलीस्ट वी ये हम फीलिंग्स कर सकते हैं, तरह तरह की फीलिंग्स आती है जाती है, हम ये फील कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो भी लव है रेडिएटिंग फ्रॉम आवर हार्ट्स, सबके लिए हम ये लव भेज सकते हैं। जैसे ये भी एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज ही हमने मैजिक डस्ट के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे भी हम ये सेम चीज पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी लाइट है, इतना लव है, जो इतने सारे लोगों के साथ हम बांट सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ हम बांट सकते हैं। इतना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लव इज विद इन अस। आपको बस ये महसूस करना है, आपको ये अवेयर रहना है कि हाँ मेरे अंदर ये है। ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द हार्ट थॉट टुडे? किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेस चैप्टर, मैजिक बुक चैप्टर एंड दिस हार्ट थॉट, आई लेट द लव ऑफ माय लव शाइन? Or and I'm assuming you all are writing the heart thoughts every day 7 times. Yes, Yes, we are right. writing down. Okay, very nice. All right, so do you all want to do the meditation, or you just, because maybe if you're late then we can just completely skip it? It's up to you. Okay, we can do. We can do? Okay, okay, let's do. आज तो जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया। चलो, होता है कभी कभी। ना मुझे लगता है कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ ना क्योंकि उसमें 5:30 AM दिया हुआ है एंड यूएस में 5:30 अभी हो रहा होगा। मुझे हाँ, लगता है वो इसलिए में भी भी ज्यादा वो भी कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन है कि वो पूरा पढ़ा नहीं, वो हाँ देख लिया, टाइम भी आया। ओके, हाँ और सेम लिंक होगी, इसीलिए वो लोग ज्वाइन कर पाए। Hi, I'm Scarlett Della Torre, and I am a sound meditation facilitator. सुनाई दे रहा है म्यूजिक सबको? यस सुनाई दे रहा है। Okay. So everybody, your back straight, your hands facing the heavens above. Now close your eyes. Let's go within. Let's first relax our mind by deep breathing. So take a deep breath in. Hold. Release. Again, take a deep breath in. Exhale. Take a deep breath in.
The more you hold your breath, the more your lungs get cleansed. So always remember that deep breathing is very essential to detox your lungs and also calm your mind. Now focus on your heart area. And focus on it like there is some dot in the heart, some white light dot, and it's getting bigger and bigger. Just imagine it's getting bigger. And that is the love in your heart, which is getting bigger and bigger. And your heart is expanding completely, and this dot is getting bigger. Just imagine that this dot, which is getting bigger now, is reaching your whole body. It's encircling all your body. And now it's getting bigger. जो लव की एनर्जी है वो बिगर और बिगर होती जा रही है. And now you can send this love and light energy to all your loved ones. जैसे जैसे ये डॉट बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये एनर्जी सर्कल बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे आप और ज्यादा लोगों को ये एनर्जी भेज रहे हो. Now you are sending all this love to all the other colleagues of yours, your neighbors, your friends and relatives. अभी ये डॉट एक्सपांड हो रहा है और ज्यादा ही ज्यादा एक्सपांड होते जा रहा है, और ये सभी लोगों की तरफ जा रहा है जिनसे आप हमेशा रिसीव करते हो सर्विसेज. वो सभी लोगों की तरफ आप अपनी ये लव, अपने प्यार की एनर्जी भेज रहे हो. You are sending this shining love and light to everybody you can think of, no matter what they do. Spread your energy to all of them. अभी ये जो आपकी लविंग एनर्जी है धीरे धीरे करके बढ़ के नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में जा रही है. वहाँ पे सभी को हील कर रही है. जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वहाँ पे, जो भी पेशेंट्स भी है वहाँ पे, सभी को ये लविंग एनर्जी वहाँ पे मिल रही है. ये सेम लविंग एनर्जी प्रेजेंस वगैरह है वहाँ पे भी जा रही है, और जो भी वहाँ पे लोग हैं उनके तरफ भी ये लविंग एनर्जी हमारे दिल से जो निकली है वो पहुँच रही है. और हमारे पास तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लव है जो एक्सपैंड होता ही जा रहा है. ये सभी लोगों तक पहुंच रहा है, जहाँ पे एरोप्लेन में पहुंच रहा है, जहाँ पे सब लोग इतने सारे लोग काम करते हैं. ये सभी लोगों को पहुंच रहा है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, या तो ट्रेन स्टेशंस के ऊपर,
जहाँ पे भी सर्विसेज है, मेंटेनेंस है और सभी जगह पे ये आपका जो प्यार है वो पहुंच के उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहा है, उनको आपकी लविंग एनर्जी भेज रहा है। और आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आप जिनको भी ये लविंग एनर्जी भेज रहे हैं उनके ऊपर एक स्माइल है। आप ये फील कर सकते हो कि जो भी हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स है सभी के लिए, सभी के ऊपर ये लाइट, लव की जो लाइट है वो जा रही है। और वही सेम एनर्जी वापस हमारे पास भी आ रही है। तो ये जो लविंग एक्सपांडिंग एनर्जी है वो सर्कल बैक हमारी तरफ हो रही है। और ये जो भी फीलिंग्स है वो कितनी अच्छी फीलिंग्स है। What a lovely feeling this is. It's a blissful feeling that we have so much love that we can give to all our fellow humans, to our Mother Earth, to the whole planet. And loving energy circling back again and again and again. Thank you, God, for this truly magical life. I feel blessed. I feel peace within. All my relationships are harmonious. Wherever I turn, prosperity follows. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, समृद्धि हमेशा मेरे साथ होती है। Every day, in every way, I'm getting better and better. And life is a truly, truly blessing. Even if some negative situations happen, I'm always cool, calm, and confident. I'm confident in myself. I'm confident in the faith which is driving me. I'm confident in my supreme power that always takes me forward, and I'm safe. I'm always protected. I trust the process of life. Life always supports me. Life always provides me. Today I only see my magnificence because I am strong, powerful, and magnificent being of light. Now let's rub your palms. Let's rub our palms together and bless our whole body for doing this marvelous work each day for us. Conscious, subconscious mind, our forehead, eyes, ears, nose, lips, our throat and neck area, shoulders, hands, fingers, back of the spine, the whole spine, hips, our magical heart, our magical lungs,
the whole chest area and our digestion area, reproductive and excretory organs, thighs, knees, calf muscles, let's thank Almighty for all our trillions and trillions of cells working in for our good every single day. Remove the toxicity and bring in so much energy into our lives. I'm strong, I'm healthy and energetic. I'm vibrant whole day. Thank you, thank you, thank you. All right, thank you so much, everyone. Thank you for joining in. Thank you, Alifia. Thank you so much. Thank you so much. How was the meditation? Did you feel sleepy today? No, not today. Not today. Perfect. I know it's a time like after your dinner, so maybe that is also the reason why you feel. Okay. Okay. So see you all tomorrow. Thank you. Love you. Love, light, and abundance to all of you. Love you too. Bye. Today I'm fasting without having anything. Oh, God bless you. God bless you. Yeah.